Your voice is not that Okay, great. hi, great Pratik. We are live now and you can start, Pratik. Brilliant, thank you. Good morning, everyone. As we are celebrating the Param Pujya Sant Shri Audhoram Education Foundation's 25 years of commitment and contribution to the community, we have the first ever webinar organized by SKB, SST and BCOC, Shri Kachi Bhanusali Seva Samaj and Bhanusali Chambers of Commerce, masterclass on new age business skills to stay relevant in the ever-changing world by Dr. Samir Karkhanis. Let me first introduce the brilliant speaker. Growth hacking expert with 2 decades of experience across industries. Dr. Samir Karkhanis is the CEO of the global education tech company Yakpo Executive Education, which represents leading universities like Harvard Business School, IESE Business School, NMIMS, and so on. Yakpo works with individual leaders, learners, corporates, and governments to help them identify their learning needs and provide them the right academic and non-academic courses from leading universities and providers in the online as well as classroom mode. By qualification, Dr. Samir is an MBA, PhD in marketing, and his expertise is in enterprise sales, growth hacking, digital transformation, strategic alliances, design thinking, and business development. He has worked with leading organizations like ExxonMobil, Foster's, General Electrics, and his last corporate job was Chief Marketing Officer of Wellington Institute of Management. Dr. Samir is a sought-after thought leader, speaker, resource for CEOs of companies who need help to build 21st century skills and strategies to remain relevant in the ever-changing world. Dr. Samir is based in Mumbai with his family and believes that risk is the only security in his life. That's a brilliant thought. Now over to you, Dr. Samir, please. Hi, good morning, everybody, and thanks for this opportunity to express my thoughts to you. We will have a very fruitful 1-hour conversation. The format is going to be, I am going to take you to a 15 to 20 minutes of a slide share presentation, which will really set the context on how things were, how things are changing, and what we need to do. After that, we will open it for a Q&A session. So you can, there is a, if you see on the screen, there is a Q&A icon available. You can write your questions in that Q&A and keep it there for you. We will take them after 15 to 20 minutes. The initial questions मैं पढ़ूंगा उसको. उसके बाद you can also come live and ask the questions. Pratik, you can till then also identify some good questions which we should definitely address, you know. Sure. That also we will try to do. Now what I'm going to do next is I'm going to switch your videos off so I come on the screen. Okay. So just 4 of you all, yeah, okay. I'm just moving and you keep your hands raised, okay, because later on again I'm going to take you inside. Yeah. Brilliant. Sounds So great. just a second and we get started. Yeah. Superb, great. So I am on now with the entire session. Again, hi friends, welcome again. Myself, Dr. Samir Karkhanis. I will lead you today to a small thought process thinking on what is the current situation, how things have changed, and what we need to do together, right? So I'm just taking a presentation I'm going to share with you, very, very simple and basic, and you will like it. Just give me a second. I'm just getting you on that. Super. Just tell me, are you able to see the screen? Just type in the chat, please.
Right. Superb. So you are able to see the screen. Great. Okay. The entire talk today is about staying relevant in this ever-changing world. Just a second. Yes. Okay. Perfect. So you can see that. I can see. 1 second. Let me again come on the screen then for you. Initial hiccups. Don't worry. It will be all right in a while. Yeah. Okay, great. So I'm on now. Tell me something. Should we really worry in this situation, what we all are in as entrepreneurs, as manufacturers, distributors, builders? Should we really worry? Or are we overreacting? Is a thought which we all need to have in mind. Many will think situation बहुत खराब है, economy 6 महीने 1 साल अभी चलने वाली नहीं है, suppliers payments देंगे नहीं, employees की salary कहाँ से दूँ? All these are lot of worry areas for all of us, right? But then we also need to think as entrepreneurs, ki was this coronavirus, this situation necessary for all of us to worry, or things were changing in the world already? बहुत सी चीजें already इस दुनिया में हो रही थी. Have we been able to identify those changes which happen in front of our eyes, and we continue doing the same kind of work with the same kind of mindset and the same kind of people over a period of time, right? So this is something which we all need to think and worry. So what has really changed? Have a look at some slides. It will just open up our discussion later on. So has anything changed the way in the last so many years of your existence? So do we write letters like this anymore? Do we communicate like this anymore? If you remember communication jo shuru hua tha, there used to be human messengers in wars. Then you have seen the movies of Salman Khan where people used to, there was a song Kabutar Ja Ja Ja, right? And then you had the hotmail from Sameer Bhatia. Uske baad inland letters the, postcards the, landline telephones, telegrams, communication aisa badhte gaya. Right? Then you came with your Gmail, then came BlackBerry, then came WhatsApp. But what are students or youngsters, your young consumer population, what are they doing today? How do people communicate today? People today are communicating not from Facebook, if you think it is Facebook. The millennial generation, the decision makers, people who have the money today are communicating through maybe Instagram. They are communicating through Snapchat. They are communicating through new ages of technology tools which we many as business owners are not even aware about. What is the future of communication? आगे क्या होगा? Communication कैसे बढ़ रहा है? Whether it is in business or person to person, it is about human computer interface. मशीन से लोग बात कर रहे हैं. Already हम लोग मशीन से ही बातें कर रहे हैं अभी. And before Corona से ही ये बातें 5-10 सालों से शुरू हुई है. People deal with machine. अब Amazon पे कुछ एक चीज सर्च करो और आगे 7 दिन आपके पीछे लगेगा. That is a machine remarketing जिसको हम बोलते हैं. Machine is talking to human beings. आप रेलवे स्क्रीन प्लेटफॉर्म से डील कर रहे हो. आप हैंडल डिवाइस के थ्रू बैंक चला रहे हो. So we are communicating through machines. क्या हमारा बिजनेस, जो भी बिजनेस में हम हैं, we can be a small distributor या a big manufacturer. क्या हमारे बिजनेस की थिंकिंग ये लाइन में जा रही है? Is something which we have to think. Next, very interesting, आप ये देख रहे हो. Today, how do we decide what to eat, where to eat, when to eat? If you remember, many senior people are there in this group. आपके ग्रुप में बहुत से सीनियर लोग मुझे दिख रहे हैं. इसमें एक जमाना था जब हम लोग महीने में 1 या 2 या 3 बार बाहर खाना खाते थे.
बराबर है। आज आपके घरों में क्या हो रहा है, आप दिन में 2 बार स्विगी जोमेटो से खाना मंगा रहे हो, हफ्ते में 3-3 2-2 बार 4 बार हफ्ते में जाके बाहर खा रहे हो। आपके घर के यंगस्टर्स जो है, हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू ईट? वो स्विगी पे डिसाइड करते हैं, वो जोमेटो पे डिसाइड करते हैं। वो देखते हैं कि डोमिनो में 1-on-1 ऑफर कभी और कितने बजे है, मैकडोनल्ड में ऑफर कितने बजे है, उनके दोस्त क्या रिव्यू दे रहे हैं उस होटल या रेस्टोरेंट के बारे में। एंड व्हेन आई से फूड, फूड मींस फूड, एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग। ओके, so there is a technological disruption which has already started, correct? सेम आगे का स्लाइड देखिए आप, बुकिंग टिकट्स। टिकट बुकिंग मींस रेलवे में आज इतना कोई ज्यादा खड़ा नहीं रह रहा है। आप हाउ डू यू बुक योर थिएटर मूवी टिकट्स? इट इज थ्रू बुक माई शो। आपके घर के बाजू में या ऑफिस के बाजू में थिएटर है, लेकिन हम बुक माई शो से खरीदते हैं। मिलेनियल यंगस्टर लोग तो डेफिनेटली ऑनलाइन खरीद रहे हैं। Same is with Redbus, ClearTrip, Make My Trip, Oyo Rooms, everything the same hotel, old businesses of this kind of consumer spendings are changing. Jobs यहाँ पे create हो रहे हैं क्योंकि businesses यहाँ पे create हो रहे हैं। Okay, हमारा business ये नई reality से aligned है या नहीं is a question. बराबर है? Look at this, Google. सबको लगता है कि बाबा गूगल, आफ्टर गॉड देयर इज गूगल, करेक्ट? सुबह उठने के वेदर से लेके, न्यूज से लेके, ट्रैवलिंग ऐप से लेके, सर्च से लेके, सभी जगह वी आर ऑन गूगल as consumers. All of you are using Google as consumer. How much all of you are using Google or the technology environment today for your own business productivity growth and or your own business revenue growth? हम लोग का अंडरस्टैंडिंग अनफॉर्चुनेटली डिजिटल मीडिया का, बहुत लोगों का, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर आल्सो वेरी स्ट्रांग ऑन ऑल व्हाट आई एम सेइंग, बट स्टिल हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि मेरा फेसबुक पे पेज है, मेरी वेबसाइट है, तो मैं डिजिटल हूँ। That is a thought many of the people in this country still believe, which is okay. slowly लोग समझ रहे हैं, लेकिन क्या हमारे बिजनेस उस टाइप की लैंग्वेज, उस टाइप के कलर्स, ये चीजें समझ रहे हैं क्या? और ये समझना जरूरी इसलिए है, क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका जो कंज्यूमर है वो नेटफ्लिक्स वाला कंज्यूमर है, वो हॉटस्टार वाला कंज्यूमर है, वो स्विगी वाला कंज्यूमर है, और वो जोमेटो वाला कंज्यूमर है। वो पेटीएम से पैसे लेता है, करेक्ट? वो दिन गए बार्टर सिस्टम से, बैंक अकाउंट, फिर एनईएफटी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये दिन चले गए। आज लोग पेटीएम जैसे मॉडल्स में आ रहे हैं, पेटीएम बैंक होते जा रही है। फ्यूचर ऑफ मनी इज व्हाट? इट इज अबाउट क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि अभी मार्केट जिस तरीके से ओपन होंगे, क्रिप्टो इज द ओनली वे। आज वो इंडिया में बैन होगा, बट थिंग्स आर चेंजिंग। बट हम लोग एटलीस्ट इतना सोच रहे हैं कि हमारे नीचे के सेल्स टीम, पाइपलाइन, प्रोडक्शन वाले ये सोच पा रहे हैं क्या? इज अ थॉट व्हिच आई वांट टू पुट इन योर माइंड एट द ओनर लेवल, राइट? This is also very important because you are family managed businesses. One generation is done a good business at a particular level. Now the thinking has stopped. The new generation will like to have this kind of fantasy things in their business. Only will then they be happy with what is happening. Okay. So it's something we need to think. Again, paradigms of business are completely changing. If you look at this, so we did not need, हमको कोरोना की जरूरत या लॉकआउट की नहीं थी, चीजें बदल रही थी। ये फोटोग्राफ्स मैंने जो आपको बताए हैं, ये लास्ट 3 से 5 सालों के हैं। ओके, कोई ज्यादा पुराने फोटो नहीं है। पेटीएम 5 साल पहले नहीं था, ओके, स्विगी 5 साल पहले नहीं था, ओला उबर 5-6 साल पहले नहीं थे। Things have changed in front of our eyes as consumers. हम सभी लोग इस केस का पार्ट है, बट हमारे बिजनेस थिंकिंग में, हमारी क्रिएटिविटी थिंकिंग में, इन व्हाटएवर बिजनेस हम कर रहे हैं, उसमें ये आ रहा है क्या? ये सोचने वाली बात है। Somebody who is in real estate, developer, land aggregation, are we promoting, marketing in this fashion very aggressively? Is something which we'll have to see. If you are in manufacturing, supply chain, how you are using technology, Japanese management techniques through technology to increase productivity, reduce, improve your quality at no extra cost, is something which is possible. Some people are already doing, and हम बोल रहे हैं economy चल नहीं रही है. So just a thought. I'm sure many know this already, but just a thought. Yeah. So ultimately, what it is? बिजनेस के बहुत से डायमेंशंस हो सकते हैं। आपको ब्रांड बनाना है, आपको मार्केट एक्सपांड करना है, आपको CSR करना है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना है, आपको क्वालिटी बढ़ानी है, आपको प्राइसिंग बढ़ानी है, जो भी हो, but business is dependent and is
dependent only on three main bottom line areas. Business is all about staying relevant. Otherwise you may continue doing business, आप करते रहोगे रोज सुबह से शाम को, वो employment हो जाएगी आपके लिए. But how do you have the next level of growth or even stay relevant? तीन चीजें अगर आप कर रहे हो बिजनेस में, if you are able to sell more than your last week, last month, last year, or better than your competitor matrix, then second, if you are able to sell fast, are we able to improve our working capital movements and flow and stocks and logistics? Most of the business owners many a times don't even know how much money is blocked in their working capital. That is reality. Many business owners of big companies also are completely dependent on chartered accountants. उनको खुद की बैलेंस शीट पढ़ने को नहीं आती. पैसा कहाँ फंस रहा है, उसका ये रेलेवेंस है. इफ यू कैन सेल फास्ट, राइट. ये समरी है जो हम बिजनेस करते हैं, तीन चीजों में है. इफ यू सेल मोर इज अबाउट मार्केटिंग, अबाउट सप्लाई चेन, अबाउट कंज्यूमर एक्टिवेशन, रीचिंग आउट, एक्वायरिंग नए कस्टमर लाना. सेल फास्ट इज अबाउट योर फाइनेंस, बराबर. इट इज अबाउट योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इट इज अबाउट वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल क्या ब्लॉक हो रहा है हमारा, दैट इज सेल फास्ट. एंड इफ यू कैन सेल इट एट अ हायर प्राइस कैन कम थ्रू गुड ब्रांडिंग, better pricing strategy, better customer service and relationship management, expanding to markets which you were not there before, diversifying in your product line. This all will give you the focus to sell at a higher price. ये तीन चार चीजें डिपेंड करती है कि आप रेलिवेंट हो या नहीं, राइट. सो बस स्पीड इज ओके, राइट. स्पीड से कोई ये नहीं है ना, जस्ट टेल मी इसको मुझे मालूम पड़े. Okay, good. Some immediate challenges that which you will face, you know, immediate challenges which will, I'm just running through the scenario. मैं scenario के through आपको ले जा रहा हूँ, फिर हम discussion में आने वाले हैं. Okay, that is the way. Immediate challenges which you will face today. Actually, these challenges were there, but still now वो prominent हो गई है because of Corona, right? And because of the lockdown and because of the uncertainty. ये कुछ challenges है जो आप लोग आज face कर रहे हो और ये बहुत evident होने वाली है. बहुत से small SME business owners जो है अपने पास, बराबर है, उनको ये question हो रहा है अभी मन में, am I still serious about the business? मैं relevant हूँ, मैं यहाँ रहने वाला हूँ, am I going to even survive this particular situation? मैं एक relevant हूँ क्या इस पूरे ecosystem के अंदर भी? These are serious questions, क्योंकि बहुत से स्मॉल SME माइक्रो बिजनेस ओनर्स का बिजनेस जो सेल्फ प्रोप्राइटरशिप होगा या 8-10 लोगों की टीम वाले होंगे, उनका सर्वाइवल अभी डिफिकल्ट हो रहा है. वो लोग ये सोचने लग गए ऑलरेडी, मैं क्या करूं, मेरा क्या मैं कहीं जॉब करके शायद ये वाला पैसा निकाल सकता हूं. एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि मैंने बहुत फैला दिया है काम, अभी मैं सीरियस हूँ क्या वो जो नई नई डाइवर्सिफिकेशन की है. दिस इज द टाइम फॉर अस टू थिंक अबाउट दैट. ओके, एक बहुत बड़ा मेंटल डिबेट एंड डायलेमा हो रहा है अभी, बहुत बड़ा. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत बड़ा इशू होगा, वर्सेस लॉयल्टी वर्सेस इमोशनल वर्सेस परफॉर्मर. ये बहुत बड़ी चीज है, हर कंपनी का बिजनेस ओनर इसके थ्रू अभी जा रहा है. आप लोग खुद जा रहे हो उसमें. मोस्ट ऑफ योर कंपनीज, मेरा अंदाजा है कि पूरी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी ड्रिवन नहीं होगी, तो ह्यूमन के ऊपर आपका एम्फोसाइज ज्यादा होगा, लोगों के ऊपर. और ये वो सिचुएशन है, मैं 20% सैलरी काटूं मार्च की, कि अप्रैल से मैं सिर्फ परफॉर्मेंस पे रखूं उसको, या 50% सैलरी काटूं. अच्छा, ये बंदा मेरे लिए इतने साल से लॉयल है, प्रोडक्टिविटी में थोड़ा सा ओके था, लेकिन लॉयल्टी तो बहुत बढ़िया है इसकी, यू नो, वफादार आदमी है. अभी इसको ये प्रोडक्ट को नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे को अच्छे दिनों में अच्छा सपोर्ट था इसका बैक ऑफिस में. इसको मैं रखूं जॉब पे या निकालूं, शुड आई, इसकी सैलरी में कितनी कम करूं, ये क्वेश्चन आएंगे. फिर आपको बहुत सारे परफॉर्मर मिलेंगे जिनके ऊपर आपका 20 to 30% एक आदमी पे बिजनेस डिपेंडेंट है. बिजनेस 80-20 वाला होता है, आप जानते हो उसको. इनकी मैं सैलरी कम करूंगा तो ये छोड़ के जाएगा तो क्या होगा, इट विल बी अ बिग क्वेश्चन. करूं भी तो कितनी कम करूं इसकी सैलरी, क्योंकि वो आपको ब्लैकमेल करेगा, उसको मालूम है वो अच्छा है. सो आपके मन में ये चोर हमेशा रहेगा, मैंने इसका सैलरी कट कर दिया या इसको बोनस नहीं दिया इस टाइम पे, तो शायद ये छोड़ के कंपटीशन के पास भी जा सकता है. अच्छा, मैं इसको रख के भी मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ,
And there will also be a very big emotional story about sympathy कि lot of लोग because of your business और आपकी सैलरी से बहुतों के घर चल रहे हैं, आप वो डायलेमा में आ जाओगे अभी कि मैं मेरा घर संभालूं कि इनका संभालूं और कब तक मैं झेल सकता हूं. Will be questions which all business owners are currently facing. ये क्वेश्चंस है ना 1-2-3 साल के बाद एनीवे आने वाले थे बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी चेंजेस, जो डिस्ट्रप्शन मैंने आपको बताया, लेकिन ये अभी बहुत एविडेंट हो गए हैं क्योंकि रूटीन जब बिजनेसेस होते हैं ना तब अपने को ये सब चीजें दिखती नहीं क्योंकि हम बिजी रहते हैं पूरा दिन. एक्चुअली ये तभी भी हो रही थी चीजें. लीगल challenges are going to be very very big from vendors, from employees and from customers. All vendors will not, now you will not be able to pay the vendors जो आपने उनसे खरीदा है, बराबर है. So you will delay payments, तो वो लोग भी लीगल केस करेंगे. You are also vendor to many of your customers. वो कस्टमर आपको पेमेंट नहीं देंगे तो आप भी उनके पीछे भागना चाहोगे अभी. Same with employees. When you are, there will be very smart employees. Many companies are smart. वो लोग आपको 10 चीजें गवर्नमेंट की लाके दिखाएंगे कि आप मुझे जॉब से नहीं निकाल सकते, ना आप मेरी सैलरी कम कर सकते हो. So you will have to find a solution. प्लस ये भी है कि अगर पुराना पैसा नहीं आ रहा है तो आपका कैश फ्लो अटक रहा है, तो आपका सप्लाई चेन अटकेगा, आप नया माल दे नहीं पाओगे, आप नया माल कस्टमर को दोगे नहीं तो पुरानी पेमेंट देगा नहीं. सो दिस आर ऑल लीगल चैलेंजेस जो ऊपर इमर्ज होने वाली है आने वाले दिनों में. करेक्ट. फिर बिग इश्यूज आर ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड बेटर देन मी ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंड रेजिंग्स, रिकवरी. बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स वाले मॉडल में है जिसके स्मॉल बिजनेसेस जो स्केल करना चाहते हैं, बैंक पे डिपेंडेंट थे, लोन्स के ऊपर डिपेंडेंट थे. Those people also will be having challenges and doubts in their mind. ये 3, 6, 8 महीने 1 साल जब तक रिकवरी होगा, क्योंकि है ना हमेशा what happening, you know, and यह बार बार हुआ है. We always overestimate the crisis and we overreact. कोई बोलेगा 3 महीना चलेगा, कोई बोलेगा 6, फिर मोदी बोलेगा 2 साल चलेगा, फिर आरबीआई आपको कुछ और बताएगी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको अलग चीजें. So we are not able to judge कि ये क्राइसिस कितने बड़े. We always overestimate crisis and underestimate the opportunity. हमको exactly ये वेबिनार के बाद उल्टा करना है, exact उल्टा करना है. Overestimate the opportunity, underestimate the crisis, because every crisis is an opportunity, right? अच्छा, जो चीजें मैं आपको ये चैलेंजेस बता रहा हूँ ना, इसके सॉल्यूशंस भी देने वाला हूँ. ये चैलेंजेस आपको मेरे से ज्यादा पता है एज अ बिजनेसमैन. वन बिग एरिया इज अबाउट कंपटीशन, expansion and diversification. Many business owners in this group will also be having, or you had plans to expand to new markets. एक नया प्रोडक्शन यूनिट डालना है, कुछ नए लाइन में डाइवर्सिफाई करना था. अभी ये मन में डाउट्स आने शुरू हो गए कि यार अभी जो पैसा है उसको बचाओ कि नया कुछ करे. So these are again doubts and questions which you will be having in your mind as of now, right? Investing in learning by going to either business schools or online is going to be a big challenge for many of you. Correct? For yourself as a business owner, for your family members who are into business, and your employees also. This is a big area. ये वाली जो इन्वेस्टमेंट थी ना, ये हमने कभी की नहीं. एट द मोस्ट आपने किसी संतोष नायर का सेमिनार कर लिया होगा, और प्रोबेबली कोई अच्छे स्पीकर होते हैं, उनके कोई सेमिनार किए, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम लगा दिया, मोटिवेट हो गए, ऑडिटोरियम में हाथ पैर हिलाए. वो गुड है, अच्छी बात है, फैंटास्टिक. वो तभी रेलिवेंट था, बट वो सिर्फ मोटिवेशन देता है, वो आउटकम नहीं देता. बहुत सी केसेस में बहुतों को मिला होगा आउटकम, आई अप्रिशिएट दैट, बट दिस इज अ न्यू लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपको करनी पड़ेगी. ये आपने कभी सोचा नहीं हुआ कि मैं, क्योंकि मेनी ऑफ आपके बहुत सारे लोगों का फॉर्मल क्वालिफिकेशन है ना 20 साल 30 साल 10 साल पुराना होगा, और उसके ऊपर हम आज के बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक डिजिटली ट्रांसफॉर्म इकोनॉमी में बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक यंग कंज्यूमर को बेचने की कोशिश कर रहे हैं विद ओल्ड नॉलेज. सो दिस इज द बिग इन्वेस्टमेंट यू विल हैव टू मेक इन ट्रेनिंग, लर्निंग फॉर योरसेल्फ एंड योर पार्टिसिपेंट्स, राइट? ये इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा. ऑनलाइन इज द ओनली वे एंड फ्यूचर ऑफ लर्निंग स्किल्स. निगोशिएशन मास्टरी, ये हमने कभी पढ़ाई की ही नहीं है लाइफ में. उसके कोर्स है मेरे पास हार्वर्ड के, निगोशिएशन मास्टरी. ये टॉपिक हमने कभी सोचा ही नहीं है. डिस्ट्रप्टिव स्ट्रेटेजी हमने सोचा ही नहीं है, राइट? सो देयर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट, लर्निंग न्यू थिंग्स एंड अप्लाइंग फ्रॉम वेरेवर. आपको कहीं से भी करना है इन द वर्ल्ड, बट ये इन्वेस्टमेंट है जिसके लिए आपने बजट बनाया था क्या नहीं पता नहीं, बट आपको अभी बनाना पड़ेगा आपके लोगों के लिए भी, बिकॉज कम लोगों में आपको ज्यादा काम करना है, राइट? अभी दिस इज द टाइम ऑफ डिजिटल
इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग चलेगा आने वाले कुछ सालों में और लोगों को भी आदत हो जाएगी, मिलने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर होते जा रहा है, राइट? सो यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन दैट काइंड ऑफ डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी एंड ब्रांडिंग ऑल्सो। ये नई कॉस्ट है हमारे लिए आज, ये पहले नहीं थी, राइट? सो यू विल हैव टू इन्वेस्ट। ये चैलेंज है एक्चुअली अपने को ये सोचने के लिए भी अभी, हाउ डू वी पुट 100 days बिजनेस प्लान। अभी आपको ये मालूम ही नहीं पड़ रहा होगा कि मैं करूँ क्या, अभी मार्केटिंग पे फोकस करूँ, कस्टमर रिकवरी पे करूँ मैं, कि मैं लोगों को मेरे संभालूं, कि फाइनेंस ऑर्गेनाइज करूँ। दिस आर मल्टी चैलेंजेस और नेक्स्ट 100 days will decide for you what is your business going to be for next 2 or 3 years, right? So this is the time and this is the challenge, very important। इस पे मैं थोड़ा, आप भी सोचिए इसके बारे में। फैमिली क्राइसिस, सक्सेशन प्लानिंग लीडिंग टू जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत बड़ा एरिया, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर बिजनेसेस इन इंडिया एंड इंक्लूडिंग जो आपके बिजनेस है आपके कम्युनिटी के, ऑल आर फैमिली बिजनेसेस, राइट? फैमिली मेंबर्स आर इन्वॉल्व, इट इज फैमिली फर्स्ट एंड बिजनेस मिक्स है ये। इसमें 4 चाचा है, 2 चाचा है, उनके 6 बच्चे हैं, ये सब बिजनेस में काम कर रहे हैं। अभी ये क्वेश्चन आने वाले हैं और मन में डाउट्स भी आने वाले हैं कि मेरा एक्स बड़ा चाचा है, वो इतना तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता, सिर्फ मेंटोर करता है बिजनेस को, तो उसको इतना परसेंटेज हम क्यों दे रहे हैं या क्यों दे? फिर बहुत सारे यंगस्टर लोग जो आपके बिजनेस में आप चाहते थे वो आए, या वो यंगस्टर भी जस्ट 1-2-3 साल से ही ग्रेजुएशन के बाद बिजनेस में आया है, उसको एक्चुअली आपने पढ़ाया आईबी स्कूल में, फिर उसको बहुत बढ़िया एमबीए भी करवाया आपने, या उसको अच्छे कॉलेज में भेजा ग्रेजुएशन, और उसको बिजनेस में ला रहे थे, वो भी आज सोच रहा है इतना बड़ा ये बिजनेस है क्या जिसमें मैं अभी मेरी पूरी टैलेंट लगाने को जाऊं। पहले भी उसको फैमिली बिजनेस में आने में इतना इंटरेस्ट नहीं था, अभी तो उसको और नहीं होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है, राइट? और इज, या आपको ये सोचना है, इज दिस द राइट टाइम टू गेट पीपल इन फैमिली बिजनेस, ये भी आपको सोचना है। सो दिस आर ऑल डिबेट, चैलेंजेस, मेंटल डिलेमा ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ओके, जस्ट 1-2 और स्लाइड एंड देन वी विल गेट इनटू क्वेश्चन आंसर, बट ये इंपॉर्टेंट है। स्किल्स यू एंड योर टीम नीड टू हैव। सबसे बड़ी अभी एक ही चीज चलने वाली है लाइफ में सर, दैट इज कोलैबोरेशन। बिना कोलैबोरेशन, फ्रीलांसिंग एंड प्रोजेक्ट वर्क, देयर विल बी नो बिजनेस। आप अभी वो भूल जाइए कि मेरा ये लाइफ टाइम कस्टमर है और ये मेरा लाइफ टाइम एम्प्लॉय है और ये लाइफ टाइम मैं पार्टी को माल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ना आपको कोई बड़ा लंबा काम रेगुलर मिलने वाला है। मेनी ऑफ द वर्क अभी प्रोजेक्ट ड्रिवन जा रही है, बहुत सारा फ्रीलांसिंग वाला काम होने वाला है और बहुत सारा कोलैबोरेटेड काम होने वाला है। So you will have to prepare your mindset to work on temporary mindset but give full service. ये आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट ओपन करने वाला है। एक बात तो क्लियर होते जा रही है कि चाइना will lose its dominance in manufacturing, pharmaceuticals, automobiles. It is going to lose the dominance. So that businesses, there is a big possibility that these businesses will come to India, because we are PM is doing a lot of stuff on Make in India. These businesses will move to markets like Mexico. This will move to Vietnam, Bangladesh. So you will again work with this kind of countries. आपको इन कंट्रियों के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, राइट? सो ये प्रोजेक्ट्स होंगे, इसमें ग्लोबल टीम्स के साथ आप और आपके लोग काम करेंगे। अभी ग्लोबल टीम से जब हम काम करते हैं, उनके काम करने के टाइम और तरीके अलग होंगे, देयर लैंग्वेज इज डिफरेंट, देयर स्किल सेट्स आर डिफरेंट। सो यू, दिस इज अ गुड टाइम, प्लीज लर्न 3 or 4 फॉरेन लैंग्वेजेस। एकदम इजी है, ट्रांसलेशन टूल्स अवेलेबल है, बहुत सारे फ्री भी लैंग्वेजेस है ऑन बिजनेस कम्युनिकेशन इन मल्टी लैंग्वेजेस। ये चांस है आपको बड़े बड़े कंपनियों से कोलैबोरेट करने का, क्योंकि आप कुछ ये वाला काम इंडिया में ऑलरेडी कर रहे थे इतने साल। नाउ योर मार्केट इज गोइंग टू एक्सपांड, प्रोवाइडेड आप डिजिटली स्ट्रांग हो, प्रोवाइडेड यू नो मल्टी लैंग्वेजेस एंड यू अंडरस्टैंड मल्टी स्किल्स। ये बहुत जरूरी है, ये गेम चेंजर हो सकता है आपके और आपके लोगों के लिए, करेक्ट? मल्टी लैंग्वेज स्किल मैंने बताया, डिजिटल लिटरेसी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब काम अभी ऑनलाइन, जैसे हम आज बात कर रहे हैं वेबिनार में, काम वैसे ही होंगे। ये एक बेसिक लेवल का कम्युनिकेशन है, जूम जिसको हम बोलते हैं। देयर आर वेरी हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन की टेक्नोलॉजी आपको सीखनी पड़ेगी, बहुत इजी होता है, राइट? यू हैव टू लर्न दैट, ताकि आप बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ अलग अलग देशों में काम कर सकते हो, राइट? डीलिंग विद डिस्ट्रप्शन, नथिंग इज परमानेंट। ये वैसे भी परमानेंट नहीं था, हम लोग सोच रहे थे कि सब चीजें परमानेंट और बढ़िया चल रही है, कभी इकोनॉमी ऊपर है कभी नीचे है, स्टॉक मार्केट हमको बता रहा था कि कैसे चल रही है इकोनॉमी, दैट इज डिफरेंट।
Disruptive strategy in thinking, in marketing, in production, in supply chain, everything is coming in technology. हमको उसको डील करने के लिए कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी, कुछ माइंडसेट बनाने पड़ेंगे, कुछ कोलैबोरेशंस करने पड़ेंगे, राइट? बहुत जरूरी स्किल अभी आपको लगेगी डेटा, फाइनेंस एंड एनालिटिक्स, बहुत जरूरी है, क्योंकि एनालिटिक्स और डेटा नाम की जो चीज है, आप लोग बहुत सुना होगा आपने, मशीन लर्निंग, एनालिटिक्स, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब रियलिटीज है। आप लोग ऑलरेडी एज कंज्यूमर्स इसका बेनिफिट ले रहे हो। नाउ एज बिजनेस ओनर्स आपको ये आपके बिजनेस में अप्लाई करना है, ओके? एंड मोर इम्पोर्टेंट, यू हैव टू लर्न थिंग्स ऑनलाइन। अभी क्लासरूम में जाने आपको शायद टाइम नहीं मिलता होगा, बट यू विल हैव टू लर्न थिंग्स ऑनलाइन ऑन व्हाट इज रेलेवेंट टू योर बिजनेस। बहुत जरूरी है आपके लिए। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन एंड उसके लिए आप इन्वेस्ट करिए। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल एंड टेक व्हाट इज नीडेड फॉर यू, राइट? सो इस टाइप का आदमी अभी अपने को लगने वाला है। आप ये नहीं बोल सकता है वो जो दिस इज अ टी शेप मैनेजर, ये हार्वर्ड की कॉन्सेप्ट है, राइट? इट इज नॉट दैट कि आई एम अ इंजीनियर, जो ऐसा डाउन जा रहा है डेप्थ, दैट मैं इंजीनियर हूँ, आई एम अ मार्केटिंग पर्सन, आई एम अ फाइनेंस पर्सन। आपके लोग भी यही बोलेंगे, बराबर है? मैं सप्लाई चेन देखता हूँ, नो, स्किल्स ऊपर आ रही है। जो ये दिख रहा है विड्थ, दैट आर द स्किल्स व्हिच यू विल नीड, दैट आर द स्किल्स, राइट? एंड व्हाट आर द स्किल्स? बेसिकली these skills are about collaboration, design thinking, entrepreneurship, innovation, problem solving. You will have to learn this. हमको लगता है हमको ये सब आता है, we don't know. So ये टाइप का आदमी जो ऑल राउंडर होगा 360 डिग्री, ये आपका लीडरशिप स्किल होगा आने वाले दिनों का। सम सेक्टर्स, लॉट ऑफ आपके इसमें, मैं जब आपके ऑर्गेनाइजर से बात कर रहा था, आप इसमें बहुत सारे सेकेंड जनरेशन वाले जो भी ग्रेजुएट हुए हैं, होने वाले हैं, या फैमिली बिजनेसेस ज्वाइन करने वाले जो लोग हैं, या अभी यंगस्टर्स है बिलो 30, इनको ये सेक्टर्स जरूर देखना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी, सब सेक्टर्स आपके लिए कंप्लीटली न्यू होंगे, बट ये हमारा रिसर्च बोलता है कि ये सेक्टर्स काफी बड़े हो रहे हैं, क्योंकि पीपल विल स्पेंड ऑन एक्सपीरियंस। इट इज द वर्ल्ड ऑफ Netflix, it is a world of outdoor entertainment, it is about world of experience, correct? People will spend on experience. So media and entertainment, ये sector काफी boom हो रहा है। आज आपको मालूम नहीं, आप सीमेंट मैन्युफैक्चरर हो, doesn't matter आज, but then इसमें आपको, क्योंकि यंगस्टर जो आपके बिजनेसेस में आएंगे, उसके आगे के 20, 30, 25 साल उसको काम करना है। आपके पास इन्वेस्टमेंट फंड्स है, आप कोई ब्रिक और मोटार पुराने टाइप के बिजनेसेस में थे, आप कोई नई लाइन सोच रहे हो, मुझे क्या करना चाहिए ये नई इकोनॉमी में, पुरानी लाइन में वो दम नहीं रहा, आपको लग रहा है अभी कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, उधर लग रहा है दिस, एंड आपके पास पैसा है, दिस आर द एरियाज यू डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। इसके बारे में हम अलग से डिस्कस कभी भी कर सकते हैं, बताइए आप प्रतीक जी को या मनीष जी को, हम लोग इसके बारे में अलग बात कर सकते हैं, बट ये बहुत बड़ा काम अभी इमर्ज हो रहा है, इसको न्यू एज इकोनॉमी वर्क बोलते हैं, राइट? लास्ट वाला पॉइंट भी देखिए, सीनियर सिटीजन्स इज अ वेरी वेरी बिग मार्केट फॉर अस। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस देश में बढ़ती जा रही है। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस टाइम 45-47 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, आज 65 to 70 इयर्स एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। लोग आज 80, 85, 90 तक भी हेल्दी जिंदा रहते हैं, बराबर है? तो इनकी नीड्स बहुत बड़ी है, ये वर्किंग भी कर सकते हैं, फिजिकल भी फिट रहते हैं, और आने वाले दिनों में ये और अच्छा ही होते जाएगा। कोरोना बिरोना ये सब चले जाएगा। कोरोना में अगर सब कुछ हुआ तो भी भारत में 1 लाख के ऊपर लोग नहीं मरने वाले हैं, अंडरस्टैंड दैट। सो इतने बड़े देश में आफ्टर 3 years नॉट मोर देन 1 लाख पीपल विल डाई इन कोरोना, सो इट इज नॉट दैट बिग, वी आर ओवर रिएक्टिंग, ओके? हैविंग सेड दैट, सीनियर सिटीजन मार्केट्स आर गोइंग टू बी वेरी बिग। इनकी लाइफस्टाइल नीड्स, इनकी फिजिकल नीड्स, इनकी पर्सनल नीड्स के लिए बहुत बड़े मार्केट्स है। हम लोग नॉर्मली मिलेनियल अंडर 25 वाले को सर्विस कर रहे हैं, बट ये भी एक सेगमेंट आपको जरूर देखना चाहिए, बराबर? प्लस लॉट ऑफ एसएमईज, अभी एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना है। आपके फैमिली में भी आप देखते रहेंगे, बहुत से वर्किंग वाले लोगों के भी जॉब जा रहे हैं, और वो लोग भी एसएमई बनेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे। आप ऑलरेडी बिजनेस ओनर्स हो, दैट इज अ बिग बिजनेस वर्टिकल बाय इटसेल्फ, हेल्पिंग एसएमएस टू ग्रो। एसएमयू को आप लोग हेल्प कर सकते हैं एज अ बिजनेस मॉडल टू ग्रो विथ योर स्किल्स एंड विथ योर एक्सपीरियंस। और ये सब कुछ टेक्नोलॉजी बहुत सीमलेसली और बहुत इजीली करने को अलाउ करती है। सम सेक्टर्स डेफिनेटली, ऑनलाइन एजुकेशन, ई लर्निंग, ये बहुत बड़ा सेक्टर है। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं ये सेगमेंट में हूँ, क्योंकि हर एक को सीखना पड़ेगा।
फ्यूचर ऑफ एजुकेशन क्लासरूम 3 साल 5 साल नहीं है, कॉलेज हम सब बंद होने वाले हैं अभी. इट इज ओनली अबाउट 10 घंटे का कोर्स, 1 महीने का कोर्स, 6 months कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, 10-hour कोर्स इन नेगोशिएशन, 2-hour कोर्स इन हाउ टू डील विद डिफिकल्ट पीपल. ये फ्यूचर इमर्ज हो रहा है. आप उसी चीज का पैसा दोगे जो आपको तभी सीखना है. When you want to learn that time, same micro skill बोलते हैं, पॉकेट साइज लर्निंग. ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. ये नेटफ्लिक्स ऑफ एजुकेशन है, ये हॉटस्टार ऑफ एजुकेशन है. वो लुक एट योर यंगर जनरेशन टू गेट इनटू दैट बिजनेसेस, राइट. सम सेक्टर्स जो हम शायद नहीं सोचे रहेंगे, तो सोचने का टाइम आ गया है. या बहुत सी चीजें आपने सुनी होगी, बहुत सी देखो, ये मैं प्रेजेंटेशन भी आपसे शेयर कर सकता हूँ. बराबर, ये सब सेक्टर्स में फ्यूचर है. आप अगर इसमें मैन्युफैक्चरर हो सकते हो, आप सप्लायर हो सकते हो, आप इसके कंज्यूमर हो सकते हो, इसमें आप कंपोनेंट डिलीवरी कर सकते हो. बट ये चीजें आगे बढ़ रही है और यही बढ़ेंगी. ब्रिक एंड मोर्टार जरूर चलेगा, बट लुक एट थिंकिंग अबाउट दिस ऑल्सो. इसको हमारे में कैसे अप्लाई करो और अपना काम कैसे बढ़ाए, आइदर वेज आपको ये करना पड़ेगा. लास्ट की एक स्लाइड पे मैं आ रहा हूँ. अल्टीमेटली द फैक्ट इज, ये मैं एक मैसेज आपको देने वाला हूँ, आप जरूर देखिए इसको. दिस इज द टाइम व्हेन द फिशरमैन कैन नॉट गो टू द सी, दे रिपेयर देयर नेट. ये टाइम है टू अपग्रेड, अपस्किल, लर्न न्यू थिंग्स, रीलर्न न्यू थिंग्स, forget the old things. This is the time to prepare yourself for the future, right? My wishes are very simple for you and very from my heart. A family legacy business with the heart of a startup. We have to all work as a startup now. You may be a big 500 crore company, but आपको mindset startup का ही लाना पड़ेगा. What is a startup? Design thinking, नए तरीके, finding best solutions, creativity, innovation, compassion, humility. ये नई skills है, ये नई skills है. That's the heart of a startup in a family legacy business. Right, so this is what I had for you. We will now open up for question answers. मैं slide रुका रहा हूँ अभी, मैं अपने इनको अभी online ले रहा हूँ. Okay. प्रतीक जी, आप हाथ ये करेंगे ऊपर तो मैं आपको इमीडिएटली राइट्स लेता हूँ. यस, वेरी नाइस. You will have to raise your hands. Yes, Pratik, 1 second. Promote to panelist. Yes, Bhanushali ji. Yes. Hello, Pratik ji, you can see me and Yes. talk now. Yes, am I audible now? Yes, very much. Yeah, so that was from my side. Amazing presentation. The last few slides were bang on because that is what we were thinking, and you exactly opened up the mindset of the people, saying that you need to get into new skills. That is how a person and a company will develop. Much accolades for the presentation for you. Right. I have just one question in mind before you can jump on to any other questions that you might have got from others. मैंने नोटिस किया स्विगी जो है पहले फूड डिलीवरी करता था. जब भी कोरोना वायरस आया, इमीडिएटली सेकेंड डे दे स्टार्टेड डिलीवरिंग ग्रोसरीज एंड एसेंशियल्स. Yes. In the fourth day, they took up the Dunzo model, wherein if Samir ji is at his office and there is something kept at his home that he needs, 40 rupees में deliver करते थे. This transition is so fast, and this ये opportunity जो उन्होंने देखी, वो इतनी जल्दी देखी और इसको जो execute किया वो बहुत अच्छे से किया. What is your mantra to identify such opportunities and execute? तो बेसिक दो चीज पे काम होता है. एक तो आप जो एग्जिस्टिंग कस्टमर आपके है, जो भी लाइन में आप है, जैसे मैं एजुकेशन में हूँ, हमारे कॉलेज चलते हैं वेलिंगकर इंस्टीट्यूट बॉम्बे में, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ. फिजिकल क्लासरूम में अभी कोई आ नहीं सकता. सो हाउ डू वी मूव दिस इमीडिएटली टू ऑनलाइन फॉर आवर रेगुलर कोर्स जिसकी आपने फी भरी है हमको, प्लस ये टाइम में क्या मैं आपको कुछ नया प्रोडक्ट दे सकता हूँ. आप आए थे हमारे पास फैमिली मैनेज बिजनेस एमबीए पढ़ने के लिए 7 days a month, तो आप मुझे 7 days का पैसा देते हो, 7 days सीखते हो, 21 days अप्लाई करते हो.
यू आर माई कंज्यूमर्स जो करेंटली क्लास में है 30-35 हजार लोग जो रहते हैं, प्लस जो एल्यूमिनाई लोग हैं। मेरे पास आपका फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। क्या मैं आज आपको बोलता हूँ कि सर आपका तो फैमिली मैनेज बिजनेस का प्रोग्राम है, आपको डिजिटल मार्केटिंग तो आता नहीं है, मैं आपको एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी दे रहा हूँ, नॉर्मल प्राइस इसकी 50,000 है, लेकिन आपके लिए 5,000 में, क्योंकि कंटेंट रेडी है, करिकुलम रेडी है। सो आइडेंटिफाई योर करंट कंज्यूमर में हम और क्या दे सकते हैं, दैट इज वन। प्लस आइडेंटिफाई लोगों की नीड। स्विगी इज नाउ गिविंग मेडिसिन ऑल्सो। उसके पास मोटर बाइक है, आदमी है, आपका घर का नंबर है और ऐप है, 4 चीजें हैं उसके पास। दवाई बोलो तो दवाई लाओ, अगर खाना बोलो तो खाना लाओ। सो आइडेंटिफाई की करंट कंज्यूमर में हम क्या कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज डिजाइन थिंकिंग अप्रोच, एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच अदर देन फिक्स्ड माइंडसेट अप्रोच। सो आइडेंटिफाई करंट कंज्यूमर की नीड्स एज वेल एज व्हाट इज द न्यू कंज्यूमर आप जो खोल सकते हो। आज हमने हमारे कंपनी में यांको में ना बहुत लोगों को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के फ्री लीडरशिप मॉड्यूल दिए हैं। 35 मिनट का मॉड्यूल है बॉस, फ्री, हार्वर्ड का ऑनलाइन वीडियो बेस, हमने आपको वो दे दिया, मैंने हजारों लोगों को दिया है। अब हमने अगर 5,000 लोगों को फ्री हार्वर्ड का एक्सपीरियंस दिया ऑनलाइन का, आज वो 1000 में से 200 लोग खड़े हो गए जो बोल रहे हैं बॉस मेरे को कोर्स करना है, फी बताओ। फी कितनी है? उसको क्या लग रहा है हार्वर्ड कोर्स है, करोड़ में चलेगा, 20 लाख में चलेगा। हम बोलते हैं $500, आप लेने वाले हो। So give some sampling to attract and give your experience। बहुत बार क्या होता है SMEs या MSME में हम एक्सपीरियंस नहीं दे पाते, क्योंकि आपका प्रोडक्ट एक्सपीरियंस वाला नहीं है ना। So उसको डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज टू बी यूज्ड फॉर दैट। Brilliant, brilliant. Thank you. So there's another question coming in, quite interesting, and I want to know your perspective on that. It is by Dakshesh Shah. Yes. He has a manufacturing unit. He's just wanting to know how to calculate and pay the current month's and the last month's salary. What would you have done if you were in his position? Okay, so I have done that. I run 100+ people content manufacturing team। आप लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हो, मैं कंटेंट मैन्युफैक्चर करता हूँ। तो हमारे पास भी वही है, प्रोडक्शन का है, कंटेंट का है, टेक्निकल का है, ऑपरेशन का है, हमारे भी वही वाले लोग हैं। हम भी मैन्युफैक्चरर है बट एजुकेशन कंटेंट के। सो व्हाट वी डिड यू नो, और अच्छा आवर बिजनेस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन सेल्स। हम लोग एक परफॉर्मेंस कंपनी चलाते हैं। अगर सेल होता है तो ही हमको कॉलेजेस पैसा देती है। ओके तो अगर हम लोग आज NMIMS के ऑनलाइन कोर्स की मार्केटिंग करते हैं, हमको कुछ नहीं मिलता, हम डिस्ट्रीब्यूटर और कंटेंट क्रिएटर है, बाकी पैसे हमारे ही लगते हैं। अगर कंज्यूमर फी भरेगा तो हमको मिलेगा। सो ये मॉडल मैन्युफैक्चरिंग में भी आपका वही है। अभी हमने क्या किया है, लास्ट मंथ में मार्च में वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट आल्सो एज बिजनेस ओनर, क्योंकि गवर्नमेंट कैन कम अगेंस्ट यू अगर कोई कंप्लेंट कर दिया कि मेरे पैसे काट लिए। So we had a very well documented performance matrix in place, जो हमने बहुत साल से कभी ज्यादा फोर्सफुली इंप्लीमेंट नहीं किया होगा, बट उसमें क्लॉजेस बहुत क्लियर थे कि आपका किस लेवल का परफॉर्मेंस होगा तो आपको सैलरी मिलेगी, इंसेंटिव मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। नहीं, हम लिवियड थे अच्छे दिनों में, बट वी एनफोर्स दैट अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अगर मैं सर्वाइव करता हूँ ना एज ए बिजनेस, तो ही मेरे लोग सर्वाइव करने वाले हैं। तो ये माइंडसेट क्लियर है। प्लस हमने काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंटेड रखा ईमेल के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर, कि होम ऑफिस कैसे काम किया जाए। न्यू अच्छा आपको लगता रहेगा मैन्युफैक्चरिंग है तो मैं क्या करूं घर पे बैठ के ना, बट देयर इज लॉट ऑफ वर्क यू कैन डू। नया कस्टमर का डेटाबेसेस बनाना, उनकी क्या नीड्स है वो समझना, तो वो क्वालिटेटिव काम भी हमने दिए। और फिर तब बंदे को बताया कि बस देख तू रेवेन्यू तो ला नहीं पा रहा, क्योंकि मेरी 100 लोगों की सेल्स टीम है बस, राइट। तो हम मेरे पास HR काफी बड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग आते हैं जाते हैं। सो हमने उनको पूरा वो काम देके उनका जो सेल, और हमारे डॉक्यूमेंट्स हमने निकाले बाहर पुराने HR के परफॉर्मेंस के, और हमने लास्ट मंथ में 30% कट किया लोगों का। पीपल बिलो 15,000 हमने कुछ कट नहीं किया, 15 to 25,000 में 15%, 25 एंड अबव के ऊपर 30%, और जो बड़े बड़े हाईफाई थे हमारे पास जो हम नहीं आज अफोर्ड कर पाते हैं, यू नो, बिकॉज़ हमारे लोग भी काफी मैच्योर्डली मैंने एक्सप्लेन करता गया मैं उनको कि बस अगर हम बचेंगे तो ही बचेंगे, और ये 2-3 महीने की बातें हैं। तो वेरी सीनियर पोजीशन 1 लाख प्लस वालों को हमने 50% तक हमने कट किया है मार्च में। Same will continue in the month of April also, और ये भी with the very genuine humble commitment, things will improve in the next 2-3 months time, और तभी we will take care in best possible way। प्लस एक बहुत अच्छी चीज हमने की है ना, हमने भले फिक्स कंपोनेंट कम किए है ना, हमने ना वेरिएबल कंपोनेंट बहुत अच्छा बढ़ा दिया है, अनबिलीवेबल बढ़ा दिया है। मेरा आइडिया क्या है कि भाई सबको थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट लगे और आप इंसेंटिव में कमा लेना। जहां आपका टारगेट था कि 5 आपको एडमिशन करनी है, आप 2 करिए, लेकिन 2 में आप वसूल कर लो। सो आपका बेसिक सैलरी घर चलेगा। प्लस आपको लोगों को ये बताना पड़ेगा, एवरीबॉडी, तो बस आज आप बाहर होटल में नहीं खा रहे हो, ना थिएटर में जा रहे हो, ना आपका ट्रैवलिंग हो रहा है, तो आप पैसे बचा भी रहे हो।
बराबर है, तो वो वाला आपको गिव अप करना पड़ेगा. So you cannot have the luxuries of life. It is work from home. It is not holiday from home. और लोग समझते हैं, समझाएंगे तो. Right, right. Yeah, emotional connect with the employees is the need of the hour right now. Very well. At the end of the day, at one level as an entrepreneur, you have to give up also. कि बस यही मेरा है. You have to talk straight. हम लोग है ना straight बात करने से डरते हैं as business owners. लॉयल्टी आती है, जो मैंने माइंडसेट कभी बताया ना, ये मेरे साथ बहुत साल से क्या होगा. जो आपके पास बहुत साल से जो आपका परफॉर्मर है वो आपको पहले समझ लेगा कि बराबर बोल रहा है यार बॉस, 1-2 महीने की तो बात है. थिंग्स आर गोइंग टू इंप्रूव. I agree. दैट इज द कम्युनिकेशन. और उसके बाद कोई जाता है सर आप नहीं रोक सकते और जाने दो. 2 महीने में आपको ऐसे एम्प्लॉय 1/3 कॉस्ट में मिलेंगे ना, टेंशन मत लेना. Right. That is a new way to look at it. Yes. Most definitely in these trying times. 100%. Loyalty is a two-way street. Very well put, sir. Very well put. Yes, I totally agree to your point. Yes. Right, sir. Do you have any other questions that have come? Oh, I have many other questions I can see on the screen. Do every business should digitalize? Yes, of course, Ketan ji, every business has to digitalize. Digitalization does not mean digital marketing. Digitalization is a technology word जिससे आपकी प्रोडक्ट बढ़ सकती है. Yeah. So every business will have to digitalize. What are the new models you have to predict in the future? I showed you Ketan again. प्रतीक जी, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ये इधर से आपको भी दिखते होंगे, right? Yeah. हाँ, मैं वहां से पढ़ रहा हूँ थोड़ा फटाफट. What are the new business models you predict? Yeah, so I have shown you 20 to 25 business models of collaboration, of integration and freelancing which are emerging, right? Swiggy का आ गया है, प्रतीक मैंने आंसर किया आपको. उसके बाद can a new entrepreneur with a new brand sell more? नहीं, आपको म्यूट करना पड़ेगा, किसी का माइक ऑन है. समीर जी, can you mute Dharmendra name please, because there is a lot of disturbance. I have even tried to personally message them. Please. 1 minute. Yes. I am Dharmendra. Mute. Perfect. Yes. Sounds great. Dharmendra, please go ahead, sir. Yes. Yeah. So can a new entrepreneur with a new brand sell more, sell fast at a premium price only through digital marketing? Yes, you can. As a new entrepreneur, you have more possibilities of selling more fast and at a higher price through digital thinking and digital marketing, because there is no price point or any past reference available for you. So you can start with a clean state position using digital marketing and branding techniques, and position at a higher level, start at a higher price point, sell fast, look at newer markets. It is very much possible. Digital is the only way which allows you to really पोजीशन, आपको एग्जैक्ट रास्ता बताता है डिजिटल एनालिटिक्स की मैं किसको बेचूं. आज हमें गुजरात समाचार या मुंबई या टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड करते हम सबको सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको. एक तो कंज्यूमर पढ़ते नहीं, आपने देख लिया है 20-25 दिन से पेपर नहीं आते, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता लाइफ में. Okay, so don't worry, it is, you can really clearly go through digital precision marketing, उसी को बोलते हैं. And consumers pay price for premium products. Don't worry. So you can definitely sell as a new entrepreneur also. आपका कोई background नहीं है, बहुत बढ़िया जगह में हुआ. What is school hunting? मुझे नहीं मालूम. प्रशांत, I really don't know that word. What do you do for salary? मैंने बताया. Have an emotional connect. Be tough. Talk straight. It's a temporary situation and things will improve. Right? And those who are going, you have to allow them to go, and those who understand कि future क्या है, because आप उनको opportunities बताइए ताकि वो लोग जुड़े रहेंगे आपके साथ. I have a manufacturing, how to calculate, मैंने roughly बताया है. Okay, I am into education service industry, running an organization called Walnut. Can franchise sales work if shown as a positive sign of start your own business? And of course, Jitesh Gajra, Jitesh, right? Jitesh Gajra, G-A-J-R-A, yes. Of course, it will run
एजुकेशन जैसी कोई इंडस्ट्री नहीं है बॉस, एवरीबॉडी हैज टू लर्न, नहीं तो दे विल बी इररिलेवेंट इन द मार्केट। भले वो 3 घंटे का आपका कोर्स कर रहा है सबीरा मर्चेंट ऑन कम्युनिकेशन स्किल, या वो मेरा 6 महीने का डिजिटल मार्केटिंग NMIMS से ऑनलाइन कर रहा है, या वो 11 मंथ्स का प्रोग्राम कर रहा है ऑन फैमिली मैनेज बिजनेस फॉर एंटरप्रेन्योर, या आपके कोर्स कर रहा है गो फ्रेंचाइज, गो B2C also, direct to customer, it will sell, right? Anything will sell where there is upgradation, लोगों को अपग्रेड करना पड़ेगा। So yeah, that is there. Pratik ji, we have time. Should I take some 1-2 live questions? How is it, Pratik ji? Yes, please. We have enough time. I think another 10-15 minutes is fine, sir. Super. Yeah, if you're free, sir, please. Yeah. So friends, अभी मैं ना आपको लाइव लेने वाला हूँ, आप लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो। जिस किसी को क्वेश्चन पूछना है ना, आप आपका रेज हैंड का बटन दबाइए, मैं आपका ऑडियो चालू करूंगा यहाँ से। ओके, सो रेज हैंड करिए आप, मैं आपको यहाँ से ऑन करूंगा। सो देयर इज अ रेज हैंड फ्रॉम दक्षेश शाह। सो दक्षेश, आई एम टेकिंग यू लाइव, आप पूछ सकते हो यहाँ पे। या दक्षेश, हेलो दक्षेश, आपका माइक्रोफोन चालू करिए और आप बात कर सकते हो। स्पीकर चालू करिए दक्षेश, आपका माइक्रोफोन। हाँ जी कर दिया मैंने। कैन यू हियर मी? यस सर, वी कैन हियर यू। सर आपने जो आई हैव कन्विंस्ड वेरी मच, आपने जो मुझे रिप्लाई दिया है मेरे क्वेश्चन का। बट अनदर थिंग सर, मेरा जो ये इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी न्यूली आई हैव एस्टैब्लिश्ड दिस ईयर, इस साल मैंने नई प्रॉपर्टी ली है, नया सब कुछ नया चालू किया है। सो देयर इज ऑलरेडी अ बर्डन, काफी मेरे मशीन्स पे काफी लोन्स है, काफी लायबिलिटीज है। तो हाउ टू मैनेज? मुझे कुछ अभी बैठता नहीं है मेरे माइंड में कि फॉर अनदर 2-3 मंथ्स आई कैन मैनेज ऑल दिस थिंग्स। सो 2-3 मंथ्स में सर थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव ना। ये टाइम यूज करिए आप कस्टमर्स आइडेंटिफाई करने के लिए। आपने देखो सर ये किया ना, जब 2-3 महीने पहले, तो आपने इसके लिए 6 महीने 1 साल 2 साल कुछ तो प्लानिंग किया था ना, कुछ सोच के ही चालू किया था। तो वो वैसे ही होने वाला है। Everything will happen that just stay focused on the same plan. Okay. इतना कुछ नहीं बदला है सर, प्लीज अंडरस्टैंड। मैंने उसके लिए वो पहले की स्लाइड में बताया ना आपको, वो हो रहा है दुनिया में, चीजें बदल ही रही है। हमको सिर्फ कोरोना ने वो हाईलाइट करके दिया है अभी। वैसे भी 6 महीने पहले भी तो हम रो रहे थे कि इकोनॉमी डाउन है, वर्ल्ड इकोनॉमी खत्म है, हम तो वही बोल रहे थे ना लोग। सर फ्रॉम लास्ट 12 मंथ समीर जी, मैंने 12 महीने में काफी अकॉर्डिंग टू माय टारगेट मैंने अच्छा बिजनेस किया है। तो आई फुलफिल्ड माय टारगेट। बट मनी का कैश फ्लो नहीं है ना, पैसा हमारे जो इंडस्ट्री में द नॉर्मली दे रूटीन में जो पैसा 5 मंथ लगता है, 5 to 6 मंथ। तो अभी जो मार्च में पैसे आने वाले थे नहीं आए हैं, तो आगे का प्लानिंग थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा मुझे लग रहा है सर। होगा ना, देखो ये टेम्पररी, ये तकलीफ होगी, लेकिन आप आपकी किधर कौन से लेवल पे कॉस्ट कम कर सकते हो, मिनिमल बेसिक लेवल पे कैसे कर सकते हो, यही जहां से पैसे नहीं आ रहे उसे रिलेशनशिप बिल्डिंग करके कंटिन्यूस एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द सेम कस्टमर्स। जो आपके वेंडर से माल जो आ रहा था, आप जैसे किसी के वेंडर हो, आपके भी कोई वेंडर थे, राइट? उनसे भी कोलैबोरेटिव अप्रोच इन प्रॉफिट शेयरिंग कैसे कर सकते हैं 3 से 6 महीनों के लिए सोचना है। इट विल रिक्वायर डीप थिंकिंग ऑफ कोर्स, बट दैट इज द वे। बट स्टिक टू योर प्लान, क्योंकि आपने जब ये शुरू किया था आपने कुछ सोच के ही इन्वेस्ट किया था सर। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। सो दैट कंटिन्यू टू द प्लान, फोकस ऑन प्लान। मैं अभी एक डिक्सी स्कॉट करके वो गंजी वंजी बनाते हैं, हमारा स्टूडेंट है वो फैमिली बिजनेस का, उसका मैंने ये एक वर्कशॉप और ये देखा, तीरपुर में है वो लोग, उनका प्लान देखा, दे हैव स्टक टू द प्लान साहब। मैं वही बोल रहा हूँ, आपने सोच के ही किया है इन्वेस्टमेंट, सो स्टिक टू द प्लान। इट्स अ टेम्पररी सिचुएशन। इतना कोई खराब नहीं, हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं साहब साइकोलॉजिकली। हम इतना न्यूज साइकोलॉजिकल यही सुन रहे हैं हम लोग आजकल, न्यूज भी हम नहीं देख रहे हैं कि न्यूज में भी यही दिखा रहे हैं आजकल सर। सब है ना, कोई बोलता है 15 दिन में लॉकआउट खुलेगा, कोई बोलता है 2 साल चलेगा, ये होगा, ये सब बोलने किसी को मालूम ही नहीं है ना सर। तो जब कुछ मालूम नहीं है तो अपनी इंस्टिंक्ट को बिलीव करो। सही बात है सर, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द सेम, यही टॉपिक पे बात करते हैं सब। हाँ, सब अभी एकदम एक्सपर्ट हो गए। सो सर ऐसे सिचुएशन में हमको अपने इंस्टिंक्ट, मैंने क्यों वो बिजनेस शुरू किया, मैंने क्यों वो इन्वेस्ट किया, क्योंकि मुझे वो फ्यूचर दिखा था, आपको दिखा था ना लास्ट ईयर वो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वो होगा सर। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। अभी आप कैरिड अवे मत होइए आप,
समीर जी, मुझे पहली बार अच्छा सुनने, पॉजिटिव सुनने का मिला आपसे। आपने जो बताया Yes. ना अपॉर्चुनिटी और क्राइसिस के बारे में, बहुत ही Yes, अच्छा sir. बताया कि एवरीबॉडी इज ओवर एस्टिमेटिंग क्राइसिस। एग्जैक्टली Yes, सर, and underestimating the opportunity. बस ये अपॉर्चुनिटी सर। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट होती है? मार्केट से नहीं होती है, दिमाग से क्रिएट होती है ना। जब आधे सर लोग पूरे दुनिया में टेंशन में है कि मेरा धंधा बंद हो रहा है, मेरा घर कैसे चलेगा, तभी भी वो लोग का जो सर्विसेज, वो जो एक्चुअली उनको टाइम देना चाहिए था काम करने में, ये फालतू चीजों में वो लोग लगाना चाह रहे हैं साहब। बराबर है? हाँ, उधर हम लोग उनका धंधा लेंगे। एग्जैक्टली सर। Just think about it. Okay. Okay, One okay, second. sir. I will take now Bandra B. Bandra B को मैं लाइव ले रहा हूँ. Okay. Yeah, please go ahead, boss. Unmic. हाँ, बोलिए Bandra. I like your slides very much, and some of the statements are really good punch. Now my Maybe sir, question, we are not able to hear, sir. Sir, can you be a little loud, sir? I have posted my question also in question Okay, answer. okay. Yeah. आप पूछना चाहो ना, आप लाइव पूछो. How can we use this new technology in the field of medical? Oh, very, very big, boss. Why not? Medical wellness, healthcare is the future, boss. People and insurance is the future. So, आपका specific business तो मैं phone पे नहीं बता पाऊंगा, but you can call me up anytime, whatever possible, I can help you on that, or I'll put you to the right people. वो ये line में है. Sir, medical, telemedics, pharmaceutical, wellness, advanced insurance schemes, यही future है. People will spend. Okay. जो आदमी के जेब में 1000 रुपए है ना, उसका स्पेंड का जो रेशियो है ना, वो बदलने वाला है, वो एक्सपीरियंस पे जाने वाला है, और वो यू नो अवेयरनेस पे जाने वाला है, और सेफ्टी पे जाने वाला है. वही पैसा डाइवर्ट होगा अभी. या Okay, good. So please share your contact details. So I will get from. Sure, I will put it on the chat, and then you can take it from there. I'll just put that on the chat. And your slides also, please. Slides में प्रतीक और मनीष को मेल करता हूँ. Okay, good. Thank मैं you. मेरा ईमेल आईडी आपको दे रहा हूँ, उसमें से आप ले सकते हैं. प्रतीक, any question which you see, which I need to answer, बताइए please. Sir, there are a few questions that were interesting. Karan asks, what if cost of digitalization for my business exceeds my future economic benefit as I am an intermediary? So the cost benefit analysis between going for digitalization and how is it profitable for me? Quite interesting question. So क्या है ना, this is a one, at least good, he is thinking क्या this is a investment. ये अच्छी बात है. Okay, he is thinking it's a investment. अभी cost benefit analysis है ना, बहुत simple है. Some first thing कभी भी cost पे आना होता है ना, कि कोई नई चीज में invest करने में, first you think were you spending some money on the same activity before? समझो आप 1 लाख रुपए पहले कोई एक एक्टिविटी का एक आउटकम अचीव करने के लिए कर रहे थे. वो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट जो आपने वो आउटकम रिजल्ट लाने के लिए की थी, उसके अगेंस्ट आपको 10 लाख रुपए का इनकम हुआ. बराबर है? अभी 1 लाख रुपए का वो जो इनकम है ना, वो एक्सपेंस है, उसमें से 50,000 रुपए निकालिए. मैं सिर्फ फिगर्स बता रहा हूँ, और वो डिजिटल के लिए लगाइए. जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन वाली बातें बताई, ये 50,000 क्या आपको 10 लाख या 20 लाख रुपया दे सकता है, तो आपके लिए वो डिजिटल चल रहा है. यू हैव टू एक्सपेरिमेंट. ये वर्ल्ड प्रोटोटाइपिंग का है बॉस. ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको मालूम ही कैसे? अभी तक आपने अभी है ना पुरानी कॉस्ट के ऊपर फ्यूचर के प्रोजेक्शन कर दिए हैं. अब आप बोल रहे हो मैं डिजिटलाइजेशन पे जाऊंगा तो मेरे को प्रोजेक्शन मालूम नहीं, तो प्रोजेक्शन करिए आप. द इजी वे ऑफ स्टार्टिंग अ प्रोजेक्शन ऑलवेज इज कि जो एक्सपेंस आप कर रहे थे उसका एक भाग निकालिए और उसको ट्राई करिए छोटे इसमें पहले. वो अगर लगता है आपको कि उसमें से मुझे कुछ रिजल्ट आ रहे, एटलीस्ट मेरे 50,000 ने खर्चा किया, मेरा 50,000 रुपए तो निकला क्या, वो फर्स्ट स्टेप है. अगर वो 50 निकल रहा है मतलब ये मॉडल आपके लिए चल रहा है. तो वो अगर 50,000 का फिर 5 लाख 5 करोड़ करने में कोई बड़ी बात नहीं है. एंड दैट इज द वे प्रोजेक्शन विल बी डन. नहीं तो क्या हम लोग हमें में बात करेंगे, यू नो, दैट इज द प्रॉब्लम. या सो यू हैव टू ट्राई. या प्रतीक? Yes, sounds great, sir. So do you have enough time for one or two questions? Yeah, we can take a few questions. Should I take? There is Tushar Bhanushali. Can I take him live? I can see here in the hand. Yes, please. Yeah. Yes, so मैं ये लाइन से जा रहा हूँ इस पे. तुषार. Hi. Am I audible now? Yes, तुषार बोलिए. Yeah, I believe COVID-19 will put China
procurement globally down. And that is an opportunity for Indian manufacturers. Very big. So what are the areas you think people should focus on in terms of manufacturing? Sure. So I'll tell you what you said is absolutely right. The kind of reports which are coming from our Harvard Business School, from Forbes magazine, and what is happening inside China currently now is absolutely discouraging for China and encouraging for all of us in the world. Okay. Just understand, America, which is one of the big consumers from China for premium products and all kind of manufacturing, and including countries like India, America will not forgive China. एक बार 9/11 हो गया, उन्होंने साफ कर दिया था पूरा वो terrorism को. They are vindictive. So America and the world will not forgive China for what they have done to us. बराबर है, पूरी इकोनॉमिक कंट्री को साफ कर दिया इन लोगों ने. So वो लोग को कोई छोड़ेंगे नहीं, हम पेनलाइज करेंगे. One way of penalty is known as economic penalties. So manufacturing, अगर चाइना किसके लिए known है? Manufacturing के लिए, supply chain के लिए, logistics के लिए, तीन चीजों में China is known, productivity के लिए. This businesses company by company will start moving. और आपने देखा है जापान पैकअप कर रहा है चाइना से, तो they have to look at newer countries. America is first looking not at India. I must tell you that they are first looking at Mexico. Okay, they are looking their neighbors. Mexico का distance time 4 to 5 days का होगा उधर से, so they are looking at Mexico first. But as an Indian manufacturer, but not everybody can go to Mexico, so India is going to be a big hub. Government of India will do a lot of things to ensure कि businesses come to India. देखो ये बहुत बढ़िया मौका है, हमने बहुत बड़ी बातें कर ली, डिजिटल इंडिया, मेक फॉर इंडिया, ये वो, अब वो अपने आप होने का मौका आ गया है. So government will invest and do a lot of things in getting companies in India. As a manufacturer, आपको क्या करना है मैं बताता हूँ. Identify your line of business which you are expertise or you are currently into. Correct? Identify those companies in those countries जो वहाँ पे manufacturing करवा रही है और किस टाइप के एंगेजमेंट है. यू लाइक टू आइडेंटिफाई, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, कुछ लोगों से बात करनी पड़ेगी, उन कंपनी के इंडियन आर्म्स के साथ आपको बात करनी पड़ेगी. शायद जो कंपनी को आज आप सप्लायर हो, अज्यूमिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग योर बिजनेस, उनसे बात करो उनके क्या प्लान है, एंड देन वी नीड टू कोलैबोरेट. जो मैंने कोलैबोरेशन वाला बात बनाया, आपको अभी आपके डेस्क मल्टी लैंग्वेज में करने पड़ेंगे, फ्रेंच में करने पड़ेंगे, स्पेनिश में करने पड़ेंगे, जर्मन में करने पड़ेंगे, तो वही कंपनियां वहां पे थी जो अभी माल मूव करेंगी प्रोडक्शन. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई आपकी क्या स्किल सेट है, क्या प्रोडक्ट में आप थे, अगर वो प्रोडक्ट्स में आप नहीं थे जो आउटसोर्स होने वाले हैं, यू कैन लुक एट दोस लाइंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड बिकॉज इट विल कम टू इंडिया. समझो यार वो इंडिया में नहीं आता है, वो बांग्लादेश में जाता है, वियतनाम में जाता है, पाकिस्तान में भी जाता है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रियों में जाता है. यू विल हैव टू चेज द कंपनी. ओके, एंड देन दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेजेस, कोलैबोरेटिव वर्किंग, फ्रीलांसिंग मॉडल से ही आपको शुरू करना पड़ेगा. सो दैट वुड बी माय सजेशन. Thank you very much. I think for small manufacturers, while they can try to have their own website and export everything, but they can also leverage on international platforms like Amazon, Walmart, and because they can be a very good procuring companies. ये सो कोलैबोरेशन जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ ना बहुत टाइम से, कोलैबोरेशन एंड फ्रीलांसिंग, ये वही है. कोलैबोरेशन मतलब कोई बड़ा मर्जर एक्विजिशन कोलैबोरेशन नहीं बाबा टाटा करता वैसा. कोलैबोरेटिंग विद पार्टनर्स हु आर लिटिल बिगर देन यू, जो एक कंसोलिडेट करेंगे हम सब मैन्युफैक्चरर्स को, और वो रिप्रेजेंट करेगा हम लोगों को, या वो काम उठाएगा और हम करेंगे, जिसको हम पहले जिसको आउटसोर्स काम बोलते थे, यू नो. बट इसका एंगेजमेंट बदलेगा. बट यू विल हैव टू बी रेडी नाउ कि क्या मूव होगा चाइना से. सब बोल रहे हैं चाइना से मूव होगा, लेकिन क्या मूव होगा और उसमें मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मेरा ब्रेड बटर क्या है उसके अंदर, you know. So that first identify your strength, your product, and what is going to be shifted, उसमें मैं कहाँ जुड़ा हूँ. So communication with them अभी से शुरू हो जाने का. That way. So एक छोटा आदमी नहीं कर सकता, but 100 छोटे लोग मिलके एक एसोसिएशन बना के फिर भी कर सकते हैं. Collaborative working. So Amazon WS services, of course, agreed completely. Huh? Yeah. Chalo, great. Next question, let's take. There's this interesting question from Samir Chandra. He says that I have a new startup jewelry business in Dubai. Okay. How do you see jewelry business going online? So Samir, I think I can see him here also. Yeah. So Samir, what I would tell you, jewelry, if you are talking about real jewelry, okay, or the precious either diamond or gold jewelry, that would be one last item for expense for many people, okay, because priority wise लोग शायद ज्वेलरी पे थोड़ा कम खर्चा करेंगे.
एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 months to 9 months, बिकॉज अभी बेसिक नीड्स अलग स्पेंड करेंगे एंड अभी बड़ी शादियां नहीं होगी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, बड़े फंक्शन नहीं अलाउ करेगी गवर्नमेंट. सो लोग है ना फैशन एक्सेसरीज पे खर्चा थोड़ा कम करने वाले हैं, बिकॉज किसको दिखाऊं मैं, यू नो, पहन के भी. और अगर मेरे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे शादी या एंगेजमेंट करनी तो फिर वो आर्टिफिशियल भी चल जाएगा, क्योंकि इट विल लुक रियल ओनली. Having said that, digital already is big into jewelry businesses. Tata Carat, you have seen that. You have seen Hare Krishna Diamonds also being into Krishna, being very big into online. There are a lot of chains from Malaysia and from Thailand who are very, very big into online jewelry. You know, so yes, jewelry one. See, please understand, when you are talking about any online selling now, branding makes the difference and identifying the right customer. So data analytics makes the difference. आप कोई भी data analytics consultant की help लीजिए, आपका market का है ना, जैसे हम लोग पहले है ना सर्वे करते थे, market research in simple language, वैसे डिजिटल से आपका फायदा क्या है कि आप ग्लोबल जाने वाले हो. You can sell to anybody based out of Dubai but for the world, right? So उसमें है ना you will have some precise digital analytics done about your customer price points, about EMI schemes to be given, tying up with finance companies for loans. So ये analytics करने का ये time है. You will have to work on different branding strategies for different markets. हम लोग पहले कैसे manufacturer जब थे ना, तभी हम लोग different packaging करते थे, but now ये different branding on social media अलग रहती है थोड़ी सी. If you can do all of those ना, it's very easy to go digital and for jewelry businesses. Yeah, so that is what it is. Yeah. Yeah, Pratik, anything more? So I think time for one last question, and then we can close it. Yeah. So you can. Sir, Dhaval Bradra has asked, in the real estate industry, preferably residential, the Facebook cost of acquisition is rupees 500 per customer, whereas Google acquisition is 1500 per customer. However, the conversion cost varies from brand to brand. Is there any other digital platform that is cheaper and has a better conversion rate than these two? Okay, so I will tell you what is happening now. Before we compare Facebook to Google to Insta to Twitter ना, I will tell you, first you try to convert, assuming आप एक exhibition में जाते हो as a residential real estate developer, वो MCC ऐसी है, वो जो आपका होता है वो पूरा क्रीडाई बिडाई में, बराबर है. उधर आप एक स्टॉल लेते हैं, वो स्टॉल की आप पहले कॉस्ट चेक करिए, उसके बाद आपको कितने सेल मिले गए 5 सालों में ये वाले एग्जीबिशनों में जाके, सो यू नो अ कॉस्ट. फिर आप एक कॉस्ट देखिए बॉस, जो कॉस्ट आपको बता रही है कि आपने कोई मैगजीन्स में ऐड किया या लोकल न्यूज़पेपर में ऐड किया या कोई इवेंट स्पॉन्सर किया, आपको एक कॉस्ट मिली उसकी, उसके अगेंस्ट आपके कितने सेल हुए, कॉस्ट टू एक्विजिशन ऑफ कस्टमर हम जिसको बोलते हैं. जब ये वाली कॉस्ट आपकी रेडी है ना, तब आप बताइए कि फेसबुक के 1500 ज्यादा है कि गूगल के 500 ज्यादा है. यू हैव टू कंपेयर मीडियम्स. एटलीस्ट आपको ये सोच के, क्योंकि आपने एक ऐड डाल दिया दैनिक जागरण में या आपके यहाँ गुजरात समाचार में, पेज 5, पेज 3, पेज 1, बिल्डर लोग तो कुछ भी डालते हैं, आपने देखा है. आपने उधर 3 लाख रुपए खर्चा कर दिए, 10 लाख रुपए खर्चा, इसके अगेंस्ट आपके कितने सेल हुए, क्योंकि आप सबको पढ़ा रहे, अपने को बहुत मजा आता है मेरी ऐड पेपर में, ऐड 2 ही लोग देखते हैं बस, खुद जिसकी ऐड है और जो आपका कॉम्पिटिटर है, और वो ऐड का हम फोटो निकालते हैं और व्हाट्सएप पे भेजते हैं, अपने को बहुत मजा आता है. उस दिन पेपर खत्म, स्टोरी खत्म उस दिन. So compare cost of your marketing in other mediums first, then come on to the cost of marketing on digital. Digital is a dangerous business. Okay, क्योंकि अगर आपकी एजेंसी अच्छी नहीं है, जिसके थ्रू आप काम करना चाह रहे हो, they can lose lot of money. And the how to bring cost of acquisition, CPL, CPR जो आप समझते होंगे, cost per lead, cost per acquisition, there are lot of techniques available if you are using the right agencies or the right talent there. वो वही वाला जो 1500 है वो 1100 पे लाए तो 400 बचता है, मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख लीड्स. यू आर टॉकिंग अबाउट बिग नंबर्स. सो यू नो, कंपेयर फर्स्ट आउटसाइड मीडियम्स टू दिस मीडियम. रेलेवेंट टारगेट ऑडियंस हम ला सक रहे हैं क्या, जो डिजिटल ही देगा आपको, फिजिकल नहीं देगा. फिर हमने मन बना लिया कि हम डिजिटल में ही जा रहे हैं, फिर वो डिजिटल में वीडियो बेस्ड ऐड कर रहा हूं मैं, कोरोजल एड्स कर रहा हूं मैं, टेस्टिमोनियल इंटरव्यूज कर रहा हूं मैं. All that can be done if you have very good analytics कि मेरा कस्टमर कौन है. एज अ बिजनेस ओनर ना, हम बेचना चाह रहे हैं लो कॉस्ट हाउसिंग, लेकिन दिखाना चाह रहे हैं रतन टाटा को भी वही ऐड इन अ मैगजीन विच मे बी यू थिंक अरे बड़ा आदमी देखेगा तो नीचे वाला, ऐसा कुछ नहीं हो. इट इज ऑल अबाउट प्रिसिशन टारगेटिंग नाउ, एकदम प्रिसिशन टारगेटिंग. अगर मुझे है ना कोई वेलिंकर का फैमिली मैनेज बिजनेस कोर्स बेचना है ना, जो
entrepreneurs आपके बहुत सारे लोग, that is why Manish ji and all are known to, because many people come from Gujarat and other parts to our college in Wellington. तो वो है ना, मैं MBA फुल टाइम वाले बच्चों को नहीं दिखाना चाहता हूँ बॉस इकोनॉमिक टाइम्स में ऐड डाल के, वो मेरा कस्टमर नहीं है। हमको क्या लगता है स्टूडेंट है, ग्रेजुएट है, कुछ तो करेगा, धंधा है बाप का, जरूर आएगा, नहीं आएगा। प्रिसिशन मार्केटिंग, जिसको जो बात करनी है उसको उतनी बात करनी है, और ये सिर्फ डिजिटल ही कर सकता है, फिजिकल नहीं कर सकता। Right. So that is my thoda 2 cents. That is what I think. Right. So I'm Great. done from my side. Thank you, sir. I'd request you to just take Dinesh Bhai Chandra, who's in the attendee Yeah, Dinesh bhai, I think you are online, Dinesh bhai. No. That's Dinesh Bhanushali. I'd request you to take Dinesh Bhai Chandra, who's going to give the vote of thanks, please. Yeah, सर मेरा भी एक क्वेश्चन था। हाँ मेरा भी एक क्वेश्चन था सर। हाँ, कौन बोल रहे हैं आप, वो तो बोलिए। दिनेश भानुशाली सर। हाँ दिनेश जी बोलिए। सर मैं ना एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ, अभी मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो मुझे क्लाइंट कहाँ से कैसे मिलेंगे एक्सपोर्ट के लिए? फिलहाल आप एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या काम करते हो, आप क्या मेहनत करते हो? अभी तो मैं अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। हाँ। तो Amazon.com में मेरे थोड़े सारे प्रोडक्ट जा रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा बड़ा करना है काम, तो मुझे वो कस्टमर चाहिए, तो कहाँ से मिलेंगे वो कस्टमर मुझे? सो Amazon में से आपके कौन से कंट्री में प्रोडक्ट आज जा रहे हैं? एक्चुअली अभी यूएस ही जा रहा है खाली। तो यूएस में कौन टाइप के कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसका आपने कुछ एनालिसिस देखा कि मेल है, फीमेल है, इंडियन है, नॉन इंडियन है, कौन सी एज ग्रुप का है, किस पगार वाला है? वो Amazon के बैकएंड एनालिटिक्स से सब मिलता है बराबर, आपको शिपिंग होती है तो? जी एक्चुअली अभी तो इंडियन कस्टमर ही है मेरे पास, और मैं एक्चुअली पूजा प्रोडक्ट बेचता हूँ, पूजा सामग्री रहती है जो। बराबर है। सब्सक्रिप्शन मॉडल है कि एक ही बार बेचने का और खत्म करने का? हाँ, एक ही बार बेचने का और खत्म। नहीं, ऐसा मत करो सर, मैं 1-2 मॉडल्स में पहले हेल्प किया था किसी को, 1-2 सिर्फ वैसा नहीं करना है अपने को, 12 महीने में 12 बार उसको किट जानी चाहिए, या 3-3 महीने की किट जानी चाहिए उसको। ओके सर। रेवेन्यू मॉडल वैसे एस्टेब्लिश करना है। प्लस देखिए कौन खरीद रहा है यूएस में, आपके कौन से एरिया, कैलिफोर्निया से आ रहा है माल आपको कि बॉस्टन से आ रहा है? ऑल ओवर यूएस। ऑल ओवर होता ही नहीं ना साहब, वही तो बोलना चाहता हूँ मैं बार बार। डिजिटल की ब्यूटी वो है, एक बार आपने देखा, इस बार मैंने 1000 पैकेट्स बेचे हैं, ये 1000 किन लोगों ने खरीदे, और ये लोग कितने महीने से यही टाइप के लोग खरीद रहे हैं, इनका पगार क्या है, ये लोग कौन सी इंडस्ट्री में? उनको एक सर्वे फॉर्म भेजो, 4 क्वेश्चन वाला, कस्टमर सर्विस वाला आपकी तरफ से, आपको समझेगा किस टाइप का आदमी मेरा माल खरीदता है। एक बार आपको समझ में आएगा, फिर वैसे वो वाले लोग डिजिटल के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बाबा ये आईटी इंजीनियर है, साउथ इंडियन बंदा है, ये 35 इयर्स का या 40 ईयर का, ये वाले लोग मेरा माल ये वाले प्राइस में खरीदते हैं, और ये वाली मेरी एड जब मैंने Amazon पे चलाई तो इन्होंने खरीदा। अभी अगर ये 400 लोग ऐसे हैं, तो अभी वो 4 लाख लोग कौन है जो मेरा खरीदेंगे? सो इट्स प्रिसिशन मार्केटिंग अगेन, so it's a marketing game. So we can discuss that, but that is the way आपको कस्टमर एक्वायर करने के लिए आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि सब कुछ मार्केट नहीं है दुनिया में। मैंने वही बताया वेलिंगर का अभी एजुकेशन एग्जांपल, 35,000 लोग अगर हम करते हैं ना, वो अलग अलग 35,000 लोग हैं। So there is no big market, no more market, it is accurate market. Okay. So मैं अभी दिनेश चंद्रा जी को मैं ले रहा हूँ। Thanks a lot. Yes sir. दिनेश जी 1 सेकंड, मैं आपको सिर्फ उसमें आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, 1 सेकंड होल्ड करिए। यस, दिनेश जी आप अभी है ऑनलाइन? हाँ, मैं ऑनलाइन हूँ। हाँ, आप दिख नहीं रहे हमको, आप एक मिनट, वी कैन हियर यू, बट प्रतीक वी आर नॉट एबल टू सी दिनेश जी। प्रतीक, यू आर देयर? Dinesh ji, yes, I am here. Dinesh ji, please, can you turn on your video? Every video is for your video. My video is on. I don't know why I can't. नहीं, वीडियो शायद बंद है दिनेश जी आपका। No, video share is on. दिखता था ना, नहीं तो you are able to see me and him? Yeah, I can. Yes, I can see you and Pratik both. हाँ, तो वीडियो ऑन मेरे को इधर नहीं दिख रहा है। मेरे को I can see Pratik very well. Yeah. Pratik can see me. Disable lower. I cannot see Dinesh bhai on the video. एक सेकंड में फिर एक बार लेता हूँ। अभी देखो दिनेश जी, अभी आपको आना ही पड़ेगा, मतलब मैंने चालू किया है ऐसे। Yeah, Dinesh ji, you are there? Yes. Yeah, I'm Yeah, we can see. Yes, boss. Please go ahead. Yeah, thank you. Okay. Yes, sir. बोलिए ना सर। I, Dinesh Chandra, trustee of Kachi Vanushali Seva Samaj Trust, on behalf of Sri Kachi Vanushali Seva Samaj Trust and Param Puja Sanskrit Odharam Education
Foundation and Banusali Chamber of Commerce extend a very hearty vote of thanks to Dr. Samir Karkhanis for hosting this webinar and sharing with us his thoughts, his opinions, solutions and opportunities today. Big thank you to Dr. Samir for your efforts towards the topic and the subject, New Age Business Skills to stay relevant in this ever-changing world. I must mention our deep sense of appreciation to Dr. Samir for your convincing explanation of the subjects. We all are inspired by your great words today. I also wish to express my gratitude to all members of Seva Samaj Trust and Odharam Education Foundation and the team BCOC for providing encouragement on this silver jubilee year of establishment of Odharam Education Foundation. Well, an event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. It requires planning and a brief bird's eye for details. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivating and dedicated team of BCOC who knows their job and are result oriented. Thank you to the panelists and attendee. Thank you very much, Doctor. Thank you. Thank you very much for this, and let's be in touch. Anything I can be of help, do let me know anytime. Yeah, thank you very much. Sure, Yeah? sure. Thank you, Thank Mr. you very Banusali Get in also. touch. Thank you. Thank you. Hariom, Bye-bye. thank you. Yeah. Thank you. Bye. Good Thanks one. all Thank of you you. all. Thank you, Thank you. organizer and Dr. Sumit. Thank you very much. Thank you very much.